Morning, my dear. Morning. All came. Let it get settled, then we will start, right? So, my dear friends, actually, we have a very less time for the session. The session will get end within 40 minutes. So, within that time, we have to work out with the strategies, right? So, well, before starting, I'd like to introduce myself. My name is Devashish Deo, and I'm your coach of soft skills and life skills. So today we are going to start the session for resume, curriculum vitae and biodata. Am I audible to all? Okay. My voice is clear and audible? My voice is clear? You must have heard about a statement, my dear all friends, that first impression counts. Yes or no? You must have heard about a statement that first impression counts. And to create a best first impression in an interview, the first and the foremost thing is that your dressing, your appearance, your grooming, and when the way you are sitting in front of the recruiter, the first and the foremost thing that you are going to present to the recruiter is your profile. Many people say it as a biodata, many people say it as a resume, and some people say it as a CV or a curriculum vitae. Okay. So now the thing comes that you must be having an impression in your mind that what to give, whether a CV to be provided to the recruiter, a resume to be handed over, or a biodata. Okay, so with this all, now there are a lot of confusions in everyone's mind that what is a biodata, what is a CV, and what is a resume. So the session for today is only to make you confusion free regarding these three terms, so that tomorrow what we can do is that tomorrow we can learn very clearly about how to prepare a profile step by step. So let's move on and start with the session for the day. Now, working out with the first point, I'd like to go with biodata. Biodata, the full form of biodata is a biographical detail of a person. Biographical details. So what do you mean by biographical details? The biographical details means what is the name of the person, from where he belonged to, what is the age of the person, what is the date of birth of the person, what is the height of the person, what is the religion, what is the caste, all the personal details of about a person is called as the biographical details of a person. Nowadays, do you feel that biodata is prevalent? Do you feel that biodata is prevalent these days? It is applicable. आज के डेट में biodata use होता है क्या? Only in few, what you can just say, platforms, biodata is used. Pardon? क्या बोल रहे हो? हाँ. सो जो बायोडेटा होता है, तो हम बायोडेटा कहाँ पे यूज करते हैं? बायोडेटा ज्यादातर गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, या फिर आप ले लो कि कहाँ पे आप wherever you are just working out with any sort of OPSC examinations, UPSC examinations, right? Or you are any sort of government jobs, railways and all, you are using your biodata. Nowadays, biodata is also popular in case of marriage proposals. जब किसी के मैरिज के प्रपोजल के लिए देना पड़ता है ना, तो हम लड़कों का बायोडेटा या फिर लड़कियों का बायोडेटा भी देते हैं. ठीक है. सो माने मैरिज बायोडेटा, ठीक है, तो वो अलग सी बात है. हम आपको अभी मैरिज के बायोडेटा के बारे में सोचना नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट मैरिज बायोडेटा, तो वो अलग बात हो जाती है. अभी जॉब की जरूरत है हमको, तो हम पहले देखते हैं जॉब कैसे चाहिए. ठीक है. तो बायोडेटा का जो पेज लिमिटेशन था, बायोडेटा में पेज लिमिटेशन एक ही पेज का था, 1 पेज लिमिटेशन. उसका पेज लिमिटेशन 1 पेज का था. और उस एक पेज में आप कौन से सीक्वेंस से रखते हैं बायोडेटा? पहले आपका पर्सनल डिटेल्स, सेकंड आता है आपका एजुकेशनल डिटेल्स, और तीसरे में आपका आता है क्या?
जो जॉब डिटेल्स या फिर एक्सपीरियंस डिटेल्स, ठीक है, पर्सनल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वो आपके लास्ट में आता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अंडर योर बायोडेटा। तो ये हो गई बायोडेटा की बात। बायोडेटा एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। 80s और 90s की सदी में, या फिर इट वाज यूज्ड ओनली इन द टाइम ऑफ 80s एंड 90s, नॉट नाउ। In the present days, biodata is restricted only up to your government applications or marriage proposals. This is all about biodata, and the limitation of page of biodata is 1 page. वो एक पेज का लिमिट होता है, ठीक है। आप कभी भी देखे रहे होंगे, whenever you are going to, I'm just admitting the other two people, आप कभी देखे होंगे कि किसी कॉमर्शियल टाइप इंस्टीट्यूशन में जब आप रेलवे का फॉर्म फिलअप करने जाते हो, या फिर किसी क्लरिकल का, बैंक क्लरिकल का फॉर्म फिलअप करने जाते हो, एंड यू आर आस्किंग फॉर अ बायोडेटा फॉर्मेट टू द टाइप इंस्टीट्यूशन, तो वो आपको एक टाइप वाला फॉर्मेट दे देता है जिसमें कि बॉक्सेस रहते हैं। यू नीड टू फिल अप द बॉक्सेस, बस आपको सिग्नेचर करके दे देना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर बायोडेटा फॉर्मेट, ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, व्हाट इज रेज्यूमे? रेज्यूमे क्या है? तो रेज्यूमे वो होता है, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। रेज्यूमे एक फ्रेंच वर्ड है, एंड द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेंच वर्ड इज समरी। सो व्हाट डू यू मीन? रेज्यूमे मीन्स समरी। रेज्यूमे का अर्थ है समरी। समरी छोटा होता है कि बड़ा होता है? समरी इज ऑलवेज शॉर्ट और अ बिग वन। समरी छोटा होता है कि बड़ा होता है? शॉर्ट होता है। ओके, वेरी गुड। तो आपको इजी से, मतलब आसान तरीके से आपको बता देते हैं। समरी जो होता है, इट इज अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट अ कैंडिडेट। कोई भी कैंडिडेट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर दिया जाए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज योर रिज्यूमे। और हम रेज्यूमे को इस तरीके से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि रेज्यूमे इज अ शॉर्ट, कस्टमाइज्ड एंड एडिटेड डिटेल of any candidate for a targeted job. अब आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, यू आर ऑल मैकेनिकल इंजीनियर्स। कोई डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, somebody wants to go in the field of production, ठीक है। somebody wants to go in the field of manufacturing, somebody wants to go in the field of research and development, and somebody wants to go in the field of marketing। तो आपके एम अलग अलग हैं। You are having a different aim to go in different directions, ठीक है। तो आप जब डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हो, या फिर आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई करने जाते हो, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ डिजाइन कंपनी, तो वहां पे डिजाइन कंपनी में मार्केटिंग का एक्सपीरियंस तो कुछ काम नहीं आएगा, है कि नहीं। डिजाइन के फील्ड में प्रोडक्शन का अगर आप एक्सपीरियंस दिखाओगे, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग का या फिर मशीन मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस दिखाओगे, दैट विल बी नॉट रेलिवेंट और रिक्वायर्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको रेज्यूमे में क्या करना होगा? अगर रेज्यूमे देते हो तो फिर रेज्यूमे में आपका स्पेसिफिक डिटेल्स देना पड़ेगा, टारगेटेड टू द जॉब। आपका जॉब जो भी है, तो उस जॉब के हिसाब से आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, मतलब डिजाइनिंग का जॉब है तो फिर डिजाइनिंग के जितने आपके स्किल्स हैं, आपके डिजाइनिंग के जितने सारे सॉफ्टवेयर आपने पढ़े हैं, ठीक है। अगर वो मशीन मेंटेनेंस का जॉब है तो फिर मशीन मेंटेनेंस के लिए आपने कौन से मशीन का ऑपरेटिंग सीखा है, उसका मेंटेनेंस कैसे सीखा है, वो सारे स्किल्स को आपको दर्शाना होता है, एंड यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट सॉर्ट ऑफ स्किल्स ओनली इनटू दैट पर्टिकुलर जॉब। सो अ रेज्यूमे इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स समरी, जिसका अर्थ होता है समरी, एंड इट इज अ शॉर्ट, कस्टमाइज्ड एंड एडिटेड डिटेल ऑफ एनी कैंडिडेट फॉर द टारगेटेड जॉब प्रोफाइल। आपका जो भी टारगेटेड जॉब प्रोफाइल होगा, उसी के हिसाब से, उसी के अनुरूप आपका जो जो स्किल्स हैं, जो अगर उसको दर्शाते हो शॉर्ट फॉर्म में, उसी को बोलते हैं रिज्यूमे, ठीक है। अगर कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो फिर यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इफ एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में आस्क मी, राइट। बस 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 एक टाइम पे एक बोलो, सुनाई देगा, ठीक है। और बार बार लोग एडमिट भी होते रहते हैं ना, तो उनको एडमिट करना पड़ता है, तो वो भी डिस्टर्बेंस हो जाता है।
एनीवेज, तो रेज्यूमे क्या है हम आपको बता दें। रेज्यूमे एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इतना एलाबोरेटेड नहीं होता है। रेज्यूमे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है और वो प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। प्रिसाइज मतलब लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन। रेज्यूमे इज ऑलवेज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अ कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन फॉर एनी टारगेटेड जॉब प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा हम पेज लिमिट के ऊपर आएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करो, पेज लिमिट के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, तो अब मान लो एक टेलर को, ठीक है, एक टेलर को मेरा मेजरमेंट लेना है, यानी कि मेरे शर्ट का मेजरमेंट लेना है, तो वो मेरे बॉडी मेजरमेंट के साथ ही वो मेजरमेंट लेगा, या फिर आपका मेजरमेंट लेगा, तो फिर वो आपके बॉडी के हिसाब से, आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से मेजरमेंट लेगा। तो रेज्यूमे भी वही होता है, जैसे कि रेज्यूमे इज ए कस्टमाइज्ड, या फिर हम उसको बोलते हैं टेलर डिटेल। टेलर डिटेल मतलब क्या, जिसको जितना चाहिए, जिस रिक्रूटर को जितना जरूरी है, द रिक्रूटर वॉट एवर थिंग्स ही रिक्वायर्स, वी आर गोइंग टू जस्ट सबमिट दो सॉर्ट ऑफ डिटेल्स ओनली। हमको ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। मान अभी आप एमसीसी कर रहे हो, यू आर डूइंग एमसीसी राइट नाउ, ठीक है। So in MCC you are learning production, in MCC you are learning CNC, in MCC you are learning designing also. So you are learning a lot of things. तो आपको सारे चीजें अगर देख के दे दोगे वहां पे, तो वो क्या होगा, वो आपका सबसे बड़ा सा प्रोफाइल हो जाएगा। एंड द रिक्रूटर डजंट रिक्वायर दैट वन, ही वुड बी मोर कंफ्यूज्ड कि आपको क्या चाहिए। तो रिक्रूटर के पास जब आप ऑनलाइन मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू देने जाते हो, तो फिर आपको रेज्यूमे पकड़ के जाना पड़ेगा। You need to go and submit a resume to the recruiter because whatever he requires, आपको वही चीज वहां पे दर्शाना पड़ेगा। And that is what called as the use of a utility of a resume. अब आप लोग जो पूछे कि पेज लिमिटेशन क्या होता है, ठीक है, तो रेज्यूमे कोई भी दे सकता है, एक फ्रेशर भी दे सकता है और एक एक्सपीरियंस पर्सन भी दे सकता है। एनी वन कैन गिव अ रेज्यूमे, ना कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूं तो मैं रेज्यूमे नहीं दे सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर मैं फ्रेशर हूं तो मैं रेज्यूमे दे सकता हूं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एनी वन कैन गिव अ रेज्यूमे, रेज्यूमे कोई भी दे सकता है, एक फ्रेशर भी दे सकता है, एक एक्सपीरियंस पर्सन भी दे सकता है, किसी के लिए लिमिटेशन नहीं है। अब अगर मैं एक्सपीरियंस्ड हूं तो बहुत सारे फील्ड्स में मेरा एक्सपीरियंस है, मानो कि टीचिंग में मेरा एक्सपीरियंस है, और ले लो मैनेजमेंट में मेरा एक्सपीरियंस है, लॉ के फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है, पर आज जो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं उसमें टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आई नीड टू कस्टमाइज माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट टीचिंग एक्सपीरियंस ओनली। मुझको और कोई एक्सपीरियंस दिखाना नहीं है, वहां पे केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस दिखाना है। कल मान लो कि हम एक जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहां पे कि मेरा मैनेजमेंट का स्किल जरूरी है। So what I would be doing, I will not be giving my teaching skills there, rather I will be giving my management related skills over there. तो एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट भी रेज्यूमे दे सकता है और एक फ्रेशर कैंडिडेट भी रेज्यूमे दे सकता है। सो देर इज नो लिमिटेशन दैट ओनली अ फ्रेशर कैन गिव और एक्सपीरियंस कैन गिव। ये जो गलत फहमी है हमेशा हर किसी में होता है, हर कोई बोलता रहता है कि रेज्यूमे कौन दे सकता है। रेज्यूमे हर कोई दे सकता है, एवरी वन कैन गिव अ रेज्यूमे। There is no doubt in a person whether he is experienced or whether he is a fresher. चाहे वो experienced हो, चाहे वो fresher हो, कोई भी resume दे सकता है। पर इसका थोड़ा सा limitation है कि आपको जो मांगा गया है, whatever requirements are there, on the basis of that requirements only you are going to present what is required in that particular company and what should be your resume according to that one. अब यहां पे पेज लिमिटेशन की बारी आती है, तो फिर हम बताएंगे रेज्यूमे का पेज लिमिटेशन होता है फ्रेशर के लिए अलग और एक्सपीरियंस के लिए अलग। अगर फ्रेशर के लिए पेज लिमिटेशन देखा जाए तो फिर फ्रेशर का पेज होता है 1 पेज मिनिमम एंड 2 पेज मैक्सिमम। फ्रेशर के लिए कितना होता है? 1 पेज मिनिमम एंड 2 पेज मैक्सिमम, मतलब 1 पेज मिनिमम 2 पेज मैक्सिमम। ठीक है, अगर मान लो कि कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन है, जैसे कि उसको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर 10-12 साल का एक्सपीरियंस है किसी का, तो फिर उसको देते देते 2 पेज में कभी कंप्लीट हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो अगर ऐसी बात हुई तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए तो 1 पेज जो होता है ना फ्रेशर के लिए, वो 1 से 2 हो जाता है,
और जो 2 पेज होता है मैक्सिमम वो 2 से 3 हो जाता है, मतलब 2 to 3 पेजेस उसका लिमिटेशन होता है, मतलब 1 to 2 पेज मिनिमम एंड 2 to 3 पेज मैक्सिमम। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस अप टू नाउ? ओके, किसी के पास कोई सवाल है तो फिर पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन कि अभी सीवी क्या होता है। सीवी और करिकुलम वाइटे जिसका फुल फॉर्म है, CV is called as curriculum vitae. Okay, so curriculum vitae is a Latin term. ये Latin का term है and the meaning of this Latin term is course of life. Course of life. तो course of life मतलब क्या है? आपके लाइफ के कोर्स के दौरान आपने क्या क्या पढ़ रखा है, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, what sort of projects you have done, what sort of trainings you have undergone. All these things comes under your courses of life. Throughout your course of life, what all things you have undergone, that all things comes under your CV और curriculum vitae. Now अब लेते हैं एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि CV is the full details of a candidate. CV में कोई एडिटेड डिटेल्स नहीं होता है, कस्टमाइज डिटेल्स नहीं होता है। जो CV दिया जाता है ना, तो CV में पूरा सारा डिटेल्स आपका दिया जाता है, उसमें कोई भी डिटेल्स ब्रेक नहीं होता है। अब मान लो आपको एक एग्जांपल देते हैं, वन कैंडिडेट, ठीक है, एक कैंडिडेट जिसने कि +2 उसने आर्ट्स किया, ठीक है, ही डिड +2 आर्ट्स। तो जब +2 आर्ट्स किया तो फिर 1 साल के बाद ही हैज ब्रेक्ड अप इस स्टडीज, उसने अपना पढ़ाई वहीं पे छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वो क्या किया, वो सोचा कि मेरा तो इंटरेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो मैं आर्ट्स में क्या करूं। सो व्हाट ही डिड इज दैट ही गेव द OJE एंट्रेंस, और उसने एंट्रेंस देके ही जॉइंड डिप्लोमा। आफ्टर डूइंग डिप्लोमा उसने फिर से एक ब्रेक ले लिया। वो ब्रेक किस लिए था, उसको एक नौकरी मिल गया, ठीक है, ही गॉट ए जॉब। और वो जॉब क्या था, वो जॉब था उसका मार्केटिंग का जॉब। सो ही गॉट अ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एंड ही जॉइंड अ कंपनी फॉर 2 years। 2 साल के लिए उसने मार्केटिंग का जॉब किया। मार्केटिंग के जॉब 2 साल करने के बाद अब वो क्या करता है ना, उसको वो बोलता है कि मेरा तो एज है पढ़ाई का, तो उसको बेकार में गंवाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेट मी डू माई बीटेक। उसने अपना बीटेक भी कंप्लीट किया। अब बीटेक के बाद उसने नौकरी फिर से ढूंढने लगा, पर ही डिडंट गॉट एनी सॉर्ट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज। अब उसको क्या लगा कि नहीं, मुझे तो जाके कहीं पे ट्रेनिंग लेना है। तो अभी आई बारी उसकी एक दोस्त की, तो जिसने कहा कि भाई CTTC ज्वाइन कर ले, लेट अस ज्वाइन CTTC। वहां पे क्या होता है ना, आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग के समेत आप जॉब भी कर सकते हो। तो ही ज्वाइन CTTC राइट नाउ। आफ्टर ज्वाइनिंग CTTC वो अभी रिक्रूटर के सामने आज बैठता है, और बैठने के समय उसको रिक्रूटर क्या करता है, रिक्रूटर बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, पूछते हैं ना, रिक्रूटर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके करियर में इतने सारे गैप कहां से आए, why you are having so much of gap in your career, ठीक है। So whenever the recruiter is asking you that why you are having so much of gaps in your career, or the next way of asking the same question is that tell me something which is not there in your कहां पे resume या फिर CV। कंफ्यूज हो गए फिर से। CV आपका फुल डिटेल्स होता है, ठीक है, रेज्यूमे आपका कस्टमाइज डिटेल होता है। तो रेज्यूमे में आप कुछ भी चीज छोड़ सकते हो जो कि आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, पर CV में आप क्या कर सकते हो, CV में आपको हर एक चीज का डिटेलिंग लिखना होता है। तो CV अगर होता तो फिर उसमें उसको वो लिखता +2 प्लक्ट, उसके बाद डिप्लोमा, ही जॉइन डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद उसका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के बाद उसने ज्वाइन किया बीटेक, बीटेक के बाद उसने ज्वाइन किया CTTC का ट्रेनिंग। तो वो सब कुछ आपको लिखना पड़ता अगर वो CV होता। अगर ये रेज्यूमे है तो फिर आप क्या करोगे, आपका वो +2 1 year का आपने किया था, उसके बाद डिसकंटिन्यू किया था, वो आप स्किप कर सकते हो। डिप्लोमा किए, डिप्लोमा के बाद 2 year का आपका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, उसको भी आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपने बीटेक ज्वाइन किया, उसके बाद आपने अभी इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तो अब जो गैप आ गया ना आपका,
सो कोई भी आपको पूछ सकता है कि वाई यू आर हैविंग सो मच ऑफ गैप इन योर करियर, और टेल मी समथिंग व्हाट इज नॉट देयर इन योर रिज्यूमे। हर कोई यही सवाल पूछता है, व्हाट इज नॉट देयर इन योर रिज्यूमे, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दैट वन। ये एक कॉमन सा एचआर क्वेश्चन है, कोई भी एचआर यही सवाल पूछता है, टेल मी समथिंग व्हाट इज नॉट देयर इन योर रिज्यूमे। आपके रिज्यूमे में जो लिखा नहीं है वो मुझे दर्शाओ। तो अब आपकी बारी आती है कि हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। जब हम एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह होगा कि टेल मी समथिंग व्हाट इज नॉट देयर इन योर रिज्यूमे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अलग से रखते हैं। वाई? बिकॉज वी आर नॉट इन अ वे ऑफ डिस्कसिंग द एचआर क्वेश्चंस टुडे। आज हम एचआर क्वेश्चन डिस्कशन करने के मूड में नहीं है। हम आज पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायोडेटा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे और सीवी के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सीवी आपका है फुल डिटेल्स, जिसमें कि आपका सारे डिटेल्स रहते हैं, आपके शुरू से लेके अंत तक, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव स्टडीड, आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, कौन से इंटर्नशिप्स किए हैं, कौन से आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके पास है। सो ऑल दिस थिंग्स वेन एवर यू आर कीपिंग, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अंडर योर करिकुलम वाइटे। अब आपके लिए सवाल है कि कल को आपको किसी naukri.com पे या फिर timesjob.com पे या फिर कोई भी जॉब पोर्टल पे आपको अगर आपका प्रोफाइल अपलोड करना है तो फिर आप क्या अपलोड करोगे? बायोडेटा अपलोड करोगे या रेज्यूमे अपलोड करोगे या फिर सीवी अपलोड करोगे? हमने ये कहां पे नहीं कहा कि रेज्यूमे फ्रेशर के लिए होता है, हमने कहा रेज्यूमे हर किसी के लिए होता है और सीवी भी हर किसी के लिए होता है। यू विल गो टू अपलोड द रेज्यूमे। क्यों अपलोड करोगे रेज्यूमे? व्हाई यू आर गोइंग टू अपलोड द रेज्यूमे? एनी रीजंस फॉर दैट? हाँ। ओके, so okay, fine, you have stated rightly, my dear. For example, you wanted to join only in the field of designing and you don't wanted to deviate your track apart from design engineering. So in that case you can upload a resume. मगर अगर आप जहां पे कि जैसे कि प्लेसमेंट सेल में, आपके कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में, जैसे कि सीटीटीसी के प्लेसमेंट ने आपने अपलोड किया होगा अपना प्रोफाइल, सो व्हाट प्रोफाइल यू हैव अपलोडेड इन? हाँ, रेज्यूमे अपलोड किया था या फिर सीवी अपलोड किया था? व्हाट यू हैव अपलोडेड? यू हैव रेज्यूमे किया। ठीक है। हाँ, पर हम आपको एक लॉजिकली एक एग्जांपल देते हैं जहां पे कि आप कोई भी जॉब पोर्टल या फिर प्लेसमेंट में आप अपलोड करते हो, आपको सीवी अपलोड करना होता है। क्यों? क्योंकि रिक्रूटर को पता नहीं है कि आपका एक्सपर्टीज कहां पे है, पर रिक्रूटर को ये चाहिए कि आप क्या क्या सीखे हो, ताकि आपके एजुकेशन के हिसाब से वो आपको ऑफर दें कि आपके लिए ये जॉब है या फिर आपके लिए वो जॉब है, और आपको जिसमें एक्सपर्टीज है अब आप क्या करोगे, उसमें अप्लाई करोगे। जब अप्लाई करोगे किसी भी एक्सपर्टीज स्किल में या फिर इंटरव्यू देखने जाओगे या फिर फेस टू फेस इंटरव्यू देने जाओगे, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव ए फेस टू फेस इंटरव्यू, इट इज बेस्ट टू टेक अ रेज्यूमे, ना कि सीवी लेके जाओ, क्योंकि सीवी होता है आपका फुल डिटेल्स, रेज्यूमे होता है आपका कस्टमाइज डिटेल। जब भी हम कोई भी चीज अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के समय अपना सारा डिटेल्स देते हैं जो रिक्रूटर को चाहिए। अगर वो हमें पूछता है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू गो विद अ शॉर्ट डिटेल और ए कस्टमाइज डिटेल। ठीक है, क्लियर? और थोड़ा सा डाउट है अभी भी? इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, चलो पेज लिमिटेशन के ऊपर आ जाते हैं। और पेज लिमिटेशन में अगर देखा जाए तो फिर सीवी में, इन सीवी यू आर गोइंग टू लिमिट योर पेज फॉर अ फ्रेशर के लिए अलग सा लिमिटेशन और एक्सपीरियंस के लिए अलग सा लिमिटेशन होता है। तो फ्रेशर के लिए लिमिटेशन होता है क्या? 2 पेज मिनिमम एंड 3 पेज मैक्सिमम। 2 पेज मिनिमम और 3 पेज मैक्सिमम होता है आपका। जबकि वही बात एक्सपीरियंस तक जब जाती है तो एक्सपीरियंस के लिए वो हो जाता है आपका 2 से 3 पेज मिनिमम और 3 से 4 पेज मैक्सिमम। सेम फंडामेंटल एज वी हैव गॉन थ्रू द रेज्यूमे ना। रेज्यूमे में जैसे 1 पेज मिनिमम 2 पेज मैक्सिमम था,
और एक्सपीरियंस की बारी जब आती थी थोड़ा एक एक पेज उसका बढ़ जाता था. So the same thing goes, or the same fundamental goes, the same calculation goes for a CV also. CV is having a limitation of 2 page and maximum limitation of 3 page. Whereas if you go for a what you can just say experienced candidate, तो वही बात बढ़ जाती है आपकी 2 से 3 पेज मिनिमम और 3 से 4 पेज मैक्सिमम में. ठीक है.